خیر خلقہ سید الاولین والآخرین اشرف الانبیاء والمرسلین الملاقب وهو یاسین رحمۃ اللہ العالمین رسول المسدد بالموصل محمد المعبوس فی آخر الزمان علی کافۃ الانس والجان المنعوت بكل لسان الناس والاحکام جمیع الشرائع والادیان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر والصلاة والسلام علی ائمة الاثنی عشر من ذریته خیر البشر حشرنا اللہ تعالی بولایتہ وتحت لوائہ یوم المحشر اما بعد. ناظرین اکرام، یہ سلسلہ دروس کا جو ماہ رمضان المبارک کے مبارک راتوں کی زینت بنا اور بن رہا ہے، نہج البلاغہ کی روشنی میں مولا علی اور ہماری زندگی. آج ہمارا موضوع ہے سیاست و ریاست زندگانی. جو ہم اپنے آپ پر آج غور کریں تو آج جب ہم انسانی معاشرے کے مسائل کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک اہم بات ہمارے سامنے کیا آتی ہے، جیسا کہ پہلے ابتدائی درس میں عرض کیا جا چکا ہے اور اصل موضوع ہی سمجھیے یہیں سے ہے، فساد فساد فساد. اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فساد کس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے. عالم انسانیت اپنے ابتدائی دور سے لے کر آج تک اسی ایک اہم مسئلے سے دوچار ہوئی ہے. حقیقت فساد کا مسئلہ در حقیقت شر ہے اور اس کا سرچشمہ جو ہے وہ جہل ہے. اسی شر کو مولا علی نے جامع غیوب بتایا ہے اور اسلام کہ جس کا ماخذ علم ہے اور جو بنیادی طور پر خیر ہے، اسی اسلام کو مسئلہ شر کا واحد حل بتایا ہے. اس سلسلے میں یہ بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ علم جسے حقیقی معنی میں علم دین کے مفہوم میں لیا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد ہے اصل نسل انسانی سے اختلاف و انتشار کو ختم کرنا. اسلامی عقیدہ توحید کی اسلامی عقیدہ توحید باری کی معرفت ہے. انسان کو کائنات کے ساتھ ہم آہنگی کی اعلیٰ تعلیم دیتا ہے. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان خاک سے پیدا ہوا ہے، اس لیے خاکساری و انکساری اس کا شیوا ہونا چاہیے اور شیطان کی طرح اس میں نخوت و تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. واضح ہو کہ انسانی معاشرہ عہد قدیم ہی سے دو متضاد نظریات اور طریقہ کار سے وابستہ رہا ہے اور دور حاضر سے یہ دور حاضر جسے ترقیاتی عہد کہا جاتا ہے، اس عہد حاضر میں بھی انسانی معاشرہ انہی دو متضاد سیاسی نظریات سے نہ صرف منسلک ہے بلکہ ان متضاد سیاسی نظریات اور ان کے احکامات کا تابع فرما بردار ہے. آج دنیا کا ہر ملک جو بظاہر ترقی پر گامزن ہے اور اپنے کو ترقی یافتہ اور مہذب کہنے کا دعویدار ہے اور اخوت و ہمدردی بھائی چارگی کا دم بھرتا ہے، انہی دو طرح کی سیاستوں سے وابستہ ہے. پہلی سیاست تو وہ ہے جو بے لگام اور پہلی سیاست تو وہ ہے جو در حقیقت بے لگام آزادی اور تخریبی کاموں سے پر ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری سیاست وہ سیاست ہے جو انسان کو بے لگام اور کھلی چھوٹ پر انسانیت کی بقا اور عوام الناس کی فلاح و بہبود کے پیش نظر انسانی معاشرے کی تعمیر کو اپنا نصب عین بنائے ہوئے ہے. بس ایسی سیاست اور ریاست جو عیب جوئی، دروغ گوئی، مکر و فریب، ظلم و تشدد، کینہ اور ریاکاری اور افتراق و انتشار کے بنیادوں پر قائم ہوتی ہے، اس کا حکمراں سیاستداں اپنے ذاتی مفاد کے پیش نظر انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کرنے میں اپنی کامیابی و کامرانی اور قابل تحسین سیاسی تصور سمجھتا ہے. اس کے برعکس ایک ایسی سیاست و ریاست جو نوع بشر کے مفاد کو اپنا نصب العین بنا لی اور عالمی انسانیت کی فلاح و بہبودی جس کا مقصد اعلیٰ ہو، ہمیں اسلام میں دکھائی دیتی ہے.
اہل قلم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہی اختلاف و انتشار جو اس وقت عالمی سیاست کی رگوں پہ میں اس طرح صلاحیت کر چکا ہے، گویا اس کی روح اسلام کو دخل اس سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام تفرقہ کا سخت مخالف ہے اور اتحاد و بھائی چارگی، اخوت و ہمدردی، ایثار و قربانی کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ ہم نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے ارشادات سے مستفید ہوتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا پرست انسان اپنی مقصد بنانے میں ہر جائز و ناجائز طریقہ استعمال کرے، مگر شریعت الہیہ کا محافظ اور دینی احکام کا نگراں انسان کامل کسی طرح ان طریقوں کو استعمال نہیں کر سکتا جو مذہب کے دستور کے مطابق ناجائز ہے۔ ذی شعور صاحبان ذوق و نظر جنہوں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام کسی بھی ایسی سیاست و ریاست کو جائز قرار نہیں دیتا جس کے تحت دوسروں کے مال و دولت کو لوٹا جائے یا دوسروں کی جائیداد کو اپنی ملکیت بنا لیا جائے۔ دوران جاہلیت میں پورا عرب معاشرہ بالخصوص سرزمین مکہ بھی جملہ برائیوں کی آماج گاہ بنی ہوئی تھی، مگر ایسے حالات میں رحمت للعالمین سید المرسلین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دے کر پورے معاشرے کی ایسی اصلاح کی جسے تاریخ انسانیت ہرگز فراموش نہیں کر سکتی۔ آئیے اس واقعے پر ذرا غور کریں۔ ہمیں تاریخ بتلاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس وقت جب فتح مکہ کے بعد حوازن لشکر اسلام کے قبضے میں آ گیا تھا اور سپاہی اسلام نے مال غنیمت کی صورت میں کثیر دولت پر قبضہ کر لیا، لیکن حضرت نے وہ تمام مال و دولت حوازن شہر کے لوگوں میں تقسیم کر دی اور خالی ہاتھ مدینے واپس ہوئے۔ اس وقت آپ نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ لوگ مال غنیمت کو لے کر واپس چلے گئے اور تم لوگ خوشنودی پروردگار جیسی عظیم دولت لے کر اپنے وطن واپس آئے۔ اسلامی تاریخ کا یہ اہم ترین واقعہ خود اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی خاطر دوسرے ممالک کو لوٹنا اور تاراج کرنا، نیز دیگر اقوام کو تباہ و برباد کرنا اسلام کی نظر میں گناہ عظیم ہے۔ یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی بھی بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے خواہ وہ مقصد کتنا ہی اہمیت والا کیوں نہ ہو، ہمیں صرف جائز طریقے ہی استعمال کرنا جائز ہے۔ مولا متقین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی ہمیں جگہ جگہ زہد و تقوی کے ایسے ہی درس دیے ہیں۔ نہج البلاغہ میں آپ کے خطبات کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بعض افراد نے مولا کو یہ مشورہ دیا کہ آپ بھی شامی حکام کے ساتھ ان کے جیسا سلوک کریں، تو آپ نے برجستہ جواب دیا کہ میں ہرگز ایسا نہ کروں گا، میری نہار سیاست تقوی ہے، میری نہار سیاست تقوی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تقوی نہ ہوتا تو میں تقریبی سیاست میں سبقت حاصل کر لیتا، لیکن میرا مکتب ایمان اور میرا اسلامی جذبہ مجھ کو اس قسم کے منصوبوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک جگہ اور آپ نے ارشاد فرمایا ما ظفر بلا سا، یعنی جو کوئی بھی گناہ کے ذریعے کامیاب ہوا وہ کامیاب نہیں ہوا بلکہ شکست دو چار ہوا۔ نہج البلاغہ میں مولا کے کلام کا بہت بڑا حصہ خدا سے ڈرتے رہنے، توشہ آخرت کی تیاری کرنے، عمل صالح بجا لانے اور تقوی و پرہیزگاری کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدا کے بندو، میں تمہیں تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا تم پر حق ہے اور تمہارے حق کو اللہ ثابت کرنے والا ہے۔ تقرب الہی کے لیے اللہ سے مدد مانگو۔ تقوی آج دنیا میں پناہ و سپر ہے اور کل یعنی قیامت میں راہ بہشت ہے۔ تقوی کا راستہ صاف اور اس پر چلنے والا نفعمند اور اس کا امانت دار یعنی خدا حافظ و نگہبان ہے۔ ہمیشہ یہ تقوی اپنے آپ کو گزشتہ اور ختم شدہ امتوں پر پیش کرتا رہا ہے کیونکہ وہ سب اس کی حاجت مند تھی۔ کل خداوند عالم اپنی مخلوق کو دوبارہ پلٹائے گا
और जो दे रखा था उसे वापस ले लेगा और अपनी बख्शी हुई नेमतों के बारे में सवाल करेगा। तो उसे कबूल करने वाले और उसका पूरा पूरा हक अदा करने वाले बहुत ही थोड़े निकलेंगे। ये तकवा शियार लोग यकीनन बालिहाज़ तादाद कम है, मगर यही लोग शाइस्ता वस्फ और मद्दाह खुदा बंदे इज़्ज़ुल में हैं। खुदा खुद अपनी किताब मुबीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं, लेकिन तकवे की आवाज़ पर कान लगाओ और सही कोशिश के साथ बराबर उसकी पाबंदी करो। इसे गुजरी हुई कोताहियों का एवज करार दो और हर मुखालिफत करने वाले के बदले में उसे अपना हमनवा बनाओ। इसे ख्वाब गफलत से अपने चौंकाने का जरिया बनाओ और इसी में अपने दिन काट दो और अपने दिनों का शियार बनाओ और गुनाहों को इसके जरिए धो डालो। इसी से अपनी बीमारियों का इलाज करो और मौत से पहले इसका तोशा हासिल करो। जिन्होंने इसे ज़ाया और बर्बाद किया है उनसे इबरत हासिल करो। ये न हो कि दूसरे तकवे पर अमल करके तुमसे इबरत अंदोज हो। देखो, तकवे की हिफाजत करो और उसके जरिए अपने आप को बचा लो। दुनिया की आलूदियों से अपना दामन पाक को साफ रखो और आखिरत की तरफ वालिहाना अंदाज से आगे बढ़ो। जिसे तकवे से बुलंदी बख्शी हो जिसे तकवे ने बुलंदी बख्शी हो उसे पस्त न समझो, और जिसे दुनिया ने औज रिफ़अत पर पहुंचाया हो उसे बुलंद मर्तबा ख्याल मत करो। खुतबा नंबर 189। दरअसल इस्लामी रियासत का मेयार खमीर अखलाक शराफत की तजीब ताहिर दरअसल इस्लामी रियासत का मेयार खमीर अखलाक शराफत की तजीब ताहिर मिट्टी से तैयार हुआ है और मकामी अखलाक की पासदारी तो इस्लामी सियासत का एक ऐसा दुर्रा इम्तियाज रहा है कि जिसकी मिसाल तो दुनियाए इंसानियत में नजर नहीं आती। आप खूब जानते हैं कि राष्ट्रवादी और सिद्क, ईमानदारी और दयानतदारी, ईसार और कुर्बानी, शफकत और हमदर्दी, इंकिसारी और तवाज़ु, अदल और मसावत, तक़वा और तहारत, तज़किये नफ्स और क़नाअत और बिलख़ुसूस सब्र और रिज़ा इस्लामी सियासत और रियासत के ऐसे इम्तियाजी ख़ुसूसियात हैं जिनके बगैर इस्लामी सियासत और रियासत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हकीकत ये है कि अल्लाह वाले रोज़ अव्वल ही से मुखलिस और बेनफ्स होकर फरीज़ हिदायत अदा कर रहे हैं और उनके हर कौल और हर अमल की बुनियाद उलूहियत पर रही है। पैगंबर इस्लाम का मुलूकाना जिंदगी बसर करने नहीं आए थे। पैगंबर इस्लाम मुलूकाना जिंदगी बसर करने नहीं आए थे, बल्कि नौ बशर को हक़ाक़ तौहीद से बाखबर करने और आलम इंसानियत को दर्ज अखलाक देने के लिए आए थे। हज़रत ने मादा और मादियात के ज़ाहिरी शान शौकत को तोड़कर रूहानियत के जज्बे को उजागर करना अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बना लिया। इसीलिए मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की मुनफरिद शख्सियत जो अहद तिफली से आगोश रिसालत से वाबस्ता रही और दस्तगाह रिसालत से इस्लामी तालीमात के दर्स हासिल करती रही, आपकी पूरी जिंदगी बेनफ्सी और सब्र व क़नाअत की आइना है। कुरान करीम ने सिर्फ सब्र करने वालों की फजीलत को बयान किया है, बल्कि सब्र करने वालों का बुलंद मर्तबा बताया है। जबकि इरशाद बारी है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि सब्र व क़नाअत खुदा की अता करदा ऐसी नेमत है जिसे इख्तियार करने के बाद कमजोर इंसान भी फितनों और शर के बदतरीन नताइज से और इबरतनाक हलाकत से अपने को बचा लेता है और ये कामयाब और बामकसद जिंदगी का आईनादार बनकर दुनियाए इंसानियत का महरे दुरक्षा बन जाता है। इस्लामी अकायद की रोशनी में दामन सब्र को हाथ से छोड़ देना और ख्वाहिशों के पीछे दौड़ना हलाकत को दावत देना है, जबकि सब्र करने वाला न तो नाकाम होता है और न ही हलाकत। जिसे सब्र रिहाई नहीं दिलाता उसे बेताबी और बेकरारी हराम कर देती है। और सब्र का नतीजा बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि साबिर कामयाबी ज़ाया नहीं करता, चाहे कितना ही ज़माना गुजर जाए कामयाब जरूर होगा। और सब्र क़नाअत के चोटी दामन का साथ है
सब्र क़नाअत में चोटी दामन का साथ है। जहाँ सब्र होगा वहाँ क़नाअत भी देखने को मिलेगी। क़नाअत से बढ़कर कोई सल्तनत नहीं और खुशखुल्क़ी से बढ़कर कोई ऐशो आराम नहीं। वाज़ेह हो कि हुस्न खुल्क़ को नेमत से ताबीर करने की वजह यह है कि जिस तरह नेमत बाय से लज्जत होती है, उसी तरह इंसान खुश अखलाक़ी और नरमी से दूसरों के दिलों को अपनी मुट्ठी में लेकर अपने माहौल को खुशगवार बना सकता है और इस तरह अपने लज्जत और राहत का सामान मुहैया करने में कामयाब हो सकता है। और क़नाअत को सरमाया और जागीर इसलिए करार दिया कि जिस तरह दिल को जागीर एहतियात को खत्म कर देती है, उसी तरह जब इंसान क़नाअत को इख्तियार कर लेता है और अपने रिज़्क़ पर खुश रहता है तो वो खल्क़ से मुस्तगना और एहतियात से दूर हो जाता है। चुनांचे अपने फर्जंद अर्जुमंद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वसीयत करते हुए मौला अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ए फर्जंद, यकीन रखो रिज़्क़ दो तरह का होता है। एक वो जिसकी तुम जुस्तजू करते हो और एक वो जो तुम्हारी जुस्तजू करता है। अगर तुम उसकी तरफ न जाओगे तो भी वो तुम तक आकर रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर गिड़गिड़ाना और मतलब निकल जाने पर कज खुल्क़ी से पेश आना कितनी बुरी आदत है। दुनिया को बस उतना ही अपना समझो जिससे अपने उक़बा की मंजिल समझ सको। अगर तुम हर चीज़ पर जो तुम्हारे हाथ से जाती रहे वावेला मचाते हो तो फिर हर उस चीज़ पर भी रंजो अफसोस करो कि जो तुम्हें नहीं मिली। मौजूदा हालात से बाद के आने वाले हालात का कयास करो। उन लोगों की तरह न बन जाओ कि जिन पर नसीहत उस वक्त तक कारगर नहीं होती जब तक कि उन्हें पूरी तरह तकलीफ न पहुंचाई जाए, क्योंकि अक्लमंद बातों से मान जाते हैं और हैवान लातों के बगैर नहीं माना करते। पड़ने वाले गम अंधों को सब्र की पुख्तगी से और हुस्न यकीन से दूर करो। जो दरमियानी रास्ता छोड़ देता है वो बेराह हो जाता है। फिर फरमाते हैं कि दोस्त बमंज़िल अजीज के होता है। एक सच्चा दोस्त वो है जो पीठ पीछे भी दोस्ती को निभाए, नफ्स की ख्वाहिशों और बदबख्तियों में साथ न छोड़ो। बदबख्तियों में साझा न बने। कितने अपने हैं जो गैरों से ज्यादा अजीज हैं और कितने गैर हैं जो अपनों से ज्यादा अजीज हैं। परदेसी वो है जिसका कोई दोस्त न हो। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। हुक्माए इस्लाम का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि कायनात की तमाम मखलूक में सिर्फ इंसान ही को अशरफुल मखलूक़ात होने का शरफ़ हासिल है। और माहिरीन इल्म नफ्सियात ने इसके मुख्तलिफ वजूहात पर मुदल्लल रोशनी डालते हुए इस बात पर काफी जोर दिया है चूंकि नफ्स इंसानी ज़ी शऊर है और शऊर तीन हालतों और तीन कुव्वतों में है। कुव्वत हिस्स, कुव्वत इदराक और कुव्वत इरादा, जो हर लम्हा अपना काम अंजाम देती रहती है। इंसान के अलावा किसी भी दूसरी मखलूक खुदा में ऐसी किसी भी सिफत का शायबा तक नहीं पाया जाता। इंसान जो दीन फितरत पर पैदा हुआ है और फितरी तौर पर उसका ज़हन कानून फितरत का इल्म हासिल करता रहता है, इन्हीं जुमला मज़कूरा वाला तीनों कुव्वतों की मदद से सीखता रहता है और ताबा हयात इल्म हासिल करता रहता है। और इन्हीं तीनों कुव्वतों की मदद से वो हक़ व बातिल, खैर व शर, नेकी और बदी के फ़र्क को समझता है। उसकी कुव्वत इरादा उसे फ़ाइल मुख्तार बनाकर ये इख्तियार देती है कि वो अपने लिए राह हक़ का इंतखाब करे या बातिल के रास्ते पर गामज़न हो जाए। वो फलाह बशरियत के तामीरी कामों में सरगर्म अमल होकर इंसानियत का लम्बरदार बन जाए या तकरीब कारी को अपना नस्बुल ऐन बना ले और शैतानी अफ़ाल का दिलदादा बनकर इंसानियत और शराफत के चेहरे पर बदमज़ा बन जाए। बस ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई कि हर शख्स जो कुछ भी है अपनी मर्जी, अपनी पसंद और अपने इरादे का नतीजा है। अब आज हम देखते हैं कि अहद जदीद जिसे हम साइंसी तरक्याती या टेक्नोलॉजी का अहद कहते हैं, निज़ाम कुदरत की जुमला कार फरमाइयों नीज हर शोबे जिंदगी को साइंस के तश्कील करदा उसूल व ज़वाबित के तहत देखते और समझते हैं और फिर तहकीकी इंकशाफात के जदीद नताइज को दुनिया के सामने पेश करते हैं। इसी सिलसिले में हमने देखा कि साइंस ने फितरत इंसानी का जो मेयार मुकर्रर किया है उसमें मौजू से मुताल्लिक अहम सवाल सिर्फ व्हाट इज दिस, क्या है, के दायरे तक महदूद है। इसके बरखिलाफ इस्लाम ने इंसानी फितरत का जो मेयार मुकर्रर किया है वो उसूल इस्तक़रा
पर मबनी है, यानी जिसके तहत इस्लाम ये बताता है कि इंसान को कैसा होना चाहिए, हाउ मैन इन द वर्ल्ड, इंसान को कैसा होना चाहिए। ऐसी सूरत में ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई कि इस्लामी उसूल व ज़वाबित नीज़ दर्स इस्लाम के तहत इंसान को रिज़ाए माबूद का पाबंद और मुस्बत मशीयत इलाही का ताबे फरमान होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में इस्लाम ने इस्लामी फितरत के जिस बुलंद व बाला मेयार को मुकर्रर किया है, उसके तहत कमाल हयात इंसानियत, रब याफ्तियत और इताअत है, और उसकी रियासत और अहकाम इलाहिया का सिद्क़ दिल से मुहाफ़िज़ होना है, और उन तमाम तरीक़ों को इस्तेमाल करना है जो दस्तूर इलाही के ऐन मुताबिक है। इस सिलसिले में गौर करने पर यह बात पूरी तरह नुमाया हो जाती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इनक़िलाब परवर ऐलान एक ऐसा कलमे तौहीद है जिसने दुनियाए इंसानियत को न सिर्फ गुलामी से आज़ादी दिलाई, बल्कि इंसान को मारिफत खुदाए ताला की तालीमात का दर्स देते हुए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने का एहसास दिला दिया। और हकीकत में यही कलमे तौहीद है, इसकी कबूलियत ने इंसान को मुसलमान बनाकर उसमें फिक्र नज़र पैदा की, शऊरी वसअतों को परवाज़ बख्शी, सिवाय अल्लाह के गैर अल्लाह के आगे सर झुकाने को नाजायज करार दिया, और इंसान को नफ्स परस्ती और कुफ्र शिर्क की जुल्मत से बाहर निकालकर तौहीद के नूरानी मकाम पर ला खड़ा कर दिया। अक़ीदा तौहीद बारी ताला यकीनन वो असल नुक्ता है जिससे दीन इस्लाम माखूज है, और यही वजह है कि इसी अक़ीदा तौहीद बारी पर इस्लामी तसव्वुर कायनात मबनी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी जिस फ़लसफ़े को हमारे सामने पेश किया, उसके तहत दीन इस्लाम दीन फितरत, दूसरे अल्फाज में दीन इंसानियत है। वाज़ेह हो कि फितरत जिसके लग़वी माना दानाई और सलाहियत है, ज़हन इंसानी अपनी सलाहियत के मुताबिक वो कायनात जो तमाम उलूम का मखज़न और कानून कुदरत का आईना है, उसका इल्म हासिल करता रहता है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हुसूल इल्म की सलाहियतों की बदौलत इंसान का नफ्स इस कदर वसी हो जाता है कि तमाम कायनात सिमट कर उसमें समा जाती है, और इसीलिए हज़रत मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने इस राज़ हकीकत को इन अल्फाज में बयान किया कि ए इंसान इन अल्फाज में बयान किया कि इंसान आलम असग़र है जो आलम अकबर को छिपाए हुए है। चुनांचे हम देखते हैं कि यही इंसान इल्म की मंजिल में जितना जितना आगे बढ़ता गया, तहसील इल्म की तस्नीकी से शिद्दत का इजाफा होता गया। चूंकि इंसान को फाइल मुख्तार बनाकर भेजा गया था, इसलिए उसके नफ्स को जब कभी भी अक्ल की सही रहनुमाई हासिल न हुई तो उसने बातिल का रास्ता इख्तियार कर लिया। ये बात वसूख के साथ कही जा सकती है कि इंसान ने अपनी ज़हनी सलाहियत, अक्ल शऊर, इल्मी इस्तिदाद और हिकमत अमली से अपने तजुर्बियात, मुशाहिदात और ताज़ा तरीन इंकशाफात में जो हैरत अंगेज इजाफा किया, तो उसके इल्म और अक्ल में भी इजाफा होता चला गया, और उसके नतीजे में इंसान का अपनी ज़ात पर इस कदर एतमाद बढ़ गया कि तकब्बुर उसके नफ्स पर गालिब आ गया। उसने ये भी समझ लिया कि उसकी अक्ल जो कुछ समझ ले वो यकीनन सही है, और जब उसका अपनी अक्ल पर मज़ीद ही निसार बढ़ा तो उसने अपनी अक्ल को अपना रहनुमा बना लिया, जबकि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान की पहले ही से हिदायत याफ्ता अक्ल हो। इसलिए हिकायत कुरान है, लैसा इंसान इल्ला मा सआ। अगर अक्ल गुमराह है तो इंसान को हलाकत में डाल कर रही है। आज का एपिसोड तमाम होता है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको इन एक हिदायतों पर